has given it to me is success. Everybody wants to be successful, everybody wants success, but what does success mean and how to achieve it, that is what I am going to discuss with you. If you ask me what is the definition of success, I will say it's a progressive, it is not something overnight. धीरे धीरे आती है. Progressive realization of worthy goals. You see, I have mentioned worthy goals. It is not about goals, but it is worthy goals. I'll explain what this definition exactly means. Progressive means journey, धीरे धीरे चलती है. Realization means experience, and worthiness means value system. There are people successful, डाकू भी successful होते हैं, but they are not into the value system. So it is realization of worthy goals that is success. Success is a manifestation of. मैंने यहाँ पे एक डायल बनाया, इसका मैंने नाम रखा P डायल. P सेंटर में मैंने रखा. P का मतलब प्रेस्पिरेशन. जब भी हम कोई काम करते हैं तो खूब पसीना बहाना पड़ता है, और जब हम पसीना बहाते हैं तो एक दिन डेस्पिरेशन आने लगती है. एक दिन आदमी को लगता है यार और बहुत लोग मेरे से आगे निकल गए, मैं तो पसीना बहाता रहा. फिर कोई हमें मिलता है जो हमें इंस्पायर करता है, तो इट बिकम्स इंस्पिरेशन. एंड देन वंस वी आर इंस्पायर्ड, then again we start having certain aspirations. And all these things, if they are combined with luck, it becomes success. So we have to first perspire, then sometimes we become desperate, then we get inspiration, and then finally with luck we achieve success. And therefore success is a manifestation of these combination of 5 things. After all, what should we do to achieve success? I say, do more than touch. We touch a thing, but we don't feel. So do more than touch, have a feel. Do more than exist. Everyone exists. The animals also exist in this universe. But we have to do something more. We don't have to exist, we have to live. We don't have to look, we have to observe. देखता हर कोई है सेब गिरता, परंतु ऑब्जर्व न्यूटन करता है, और इसीलिए लॉज ऑफ ग्रेविटेशन बनते हैं. डू मोर देन रीड. पढ़ता हर कोई है, एब्जॉर्ब कोई कोई करता है. एंड डू मोर देन एब्जॉर्ब, अप्लाई. The real education is, or the real science is, which we can apply in our society. If we cannot apply the science or the knowledge which we have got into the society, it is a meaningless knowledge, I tell you. So everything, whatever we achieve in life, we have to apply it to the society, because we are an integral part of the society, and they say man is a social animal. यदि हम एक सामाजिक प्राणी हैं, तो जो कुछ हमारा ज्ञान है, जब तक हम उसे समाज को दे नहीं सकते, तो ये मीनिंगलेस हो जाता है. डू मोर देन हियर, लिसन. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लाइक इफ वी आर 30 सिटिंग अराउंड, माई वॉइस इज रीचिंग टू एवरीवन. So many people may be hearing it, but there will be very few who will be listening it. अगर मैं तुम्हें सादा सा उदाहरण दूं, बड़ा सिंपल सा उदाहरण दूं, गुरु नानक देव का नाम आप सब लोगों ने सुना. गुरु नानक देव से एक मौलवी ने कहा कि आप कहते हैं सब कुछ एक है, तो क्या अब मेरी मस्जिद में आकर नमाज पढ़ेंगे? तो गुरु नानक देव ने कहा कि मैं मस्जिद में आकर नमाज पढ़ूंगा, परंतु मेरी एक शर्त है कि यदि तुम भी मेरे साथ नमाज पढ़ो तो मौलवी ने कहा ये क्या शर्त है? मैं तो रोज नमाज पढ़ता हूं, सुबह शाम पढ़ता हूं, तुम्हारे साथ नमाज पढ़ने का क्या हुआ? मैं तुम्हारे साथ पढ़ूंगा. दोनों जाते. एक बार तो नानक भी झुकते हैं, मौलवी भी झुकता है. दूसरी बार और आगे मौलवी झुकता चला जाता है, पर गुरु नानक नहीं झुकते.
मौलवी कहता है शर्त में जीत गए, तुमने कहा था मैं नमाज पढ़ूंगा, तुमने पढ़ी नहीं। तो गुरु नानक देव ने कहा कि नमाज तो मैंने पढ़ी, तू तो सिर्फ उल्टा सीधा हुआ, नमाज तूने नहीं पढ़ी। जब तू उल्टा सीधा हो रहा था तब तू लाहौर की मंडी में घोड़े बेच रहा था। यू गॉट माई पॉइंट? कि मन से, आत्मा से नमाज नहीं पढ़ रहा था वो, सिर्फ झुकने से नमाज अदा। सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन हियरिंग एंड लिसनिंग. वी हैव टू अंडरस्टैंड, एंड व्हेनेवर वी आर इनटू एन असेंबली वी मस्ट लिसन, वी मस्ट नॉट हियर. And not only listen, we need to understand. Understanding is very important. Do more than help. सहायता करने की हर कोई बात करता है, परंतु सेवा की कोई बात नहीं करता. हमने जिस समाज से लिया, यदि हम उस समाज को वापस नहीं कर सकते तो हमारा यहाँ आना बेकार. We must pay it back to the society. We must pay it back to our parents. We must pay it back to our teachers. It's our utmost duty. Do more than dream. Everybody dreams. But there are very few who wake up and chase those dreams. Chasing the dreams is very important. You see, everybody has dreams and everybody dreams. The difference between a successful and an unsuccessful person is that the successful man will get up in the morning, सुबह उठेगा और अपने सपने के पीछे पड़ जाएगा, उसके ऊपर डेट डाल देगा कि ये सपना मेरे को इस तारीख तक पूरा करना है, और उसके साथ अपनी डिटर्मिनेशन, अपना डिसिप्लिन, अपना डेडिकेशन डालेगा, तो वो नेचुरली जो ड्रीम है वो उसकी लाइफ के गोल में कन्वर्ट. Do more than work. Everybody works, but there are few who excel. So it is. Now few people they say, do you think lots of money is success? आज irony is that the youth is into package. पहले लड़का भी देखते थे तो गुणवान देखते थे, लड़की भी देखते थे तो गुणवती देखते थे. अब एक ही क्राइटेरिया, पैकेज कितना. हर चीज को हमने पैसे से तोलना शुरू किया, और सबसे बड़ी आयरनी है कि लोग कहते हैं इंडिया इज अ बिग बाजार. क्या हम चाहेंगे कि कोई हमारी मातृभूमि को बाजार कहे? आपको अच्छा लगेगा? Certainly not. So we have to come out of this trend. People say money is success, but I'll go otherwise. Money will buy you a house, but not home. Money will buy you a bed, but not sleep. Money will buy you food, but not appetite. Money will buy you clock, but not time. समय नहीं दे सकता, और हमारी लाइफ समय से बनी. Money will buy you books. You can have a wonderful library, but not wisdom. Money will buy you medicines, but it can't buy you health. Money will buy you a ring, but not marriage. एक बड़ा अच्छा सा भारतीय वाङ्मय में श्लोक है, और इस श्लोक के मायने में समझा देता हूं, क्योंकि संस्कृत हो सकता है कुछ लोगों को ना आती है. सांप हवा पे जिंदा रह सकता है, परंतु उसका विष कम नहीं होता. हाथी सूखे पत्ते खाकर रहता है, परंतु उसकी शक्ति कम नहीं होती, पूरा बलवान बना रहता है. और ऋषि मुनि हमारे कंद मूल खाते रहते हैं, परंतु उनमें ज्ञान की कमी नहीं आती. और इसीलिए मनुष्य के लिए सबसे बड़ा धन संतोष का धन, सबसे बड़ा सुख संतोष. सो सेटिस्फैक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट than money. You may be satisfied only with a little bit of money, and you may not be satisfied with tons and tons of money. There are people in this world who were the billionaires, multi-billionaires, but yet committed suicide in the end. There are n number, list is endless. I can go on and on with the list,
But let me tell you, money will never buy you peace in your life. Money is important, but is not the only thing which is in my definition of success. I have made it very simple. I'll tell you a few things which are very important for our personality, and I have made it ABC of success. A stands for attitude. Positive mental attitude. हर चीज हमारी सोच पर निर्भर है, और सोच भी सकारात्मक हो, पॉजिटिव हो. अक्सर मैंने देखा कि सभी लोग नेगेटिव चीजों की बात करते हैं. यदि मैं आपको बताऊं, हमारी पेरेंटिंग, हमारी टीचिंग इज ऑल अबाउट नेगेटिविटी. इफ आई गिव यू द डाटा, बाय द टाइम ए चाइल्ड इज 4 years of age in India, 4 साल का जब तक बच्चा होता है, 1.5 लाख बार वो ना सुन चुका होता है. और एक ना को, एक नेगेटिव स्टेटमेंट को ठीक करने के लिए 4 पॉजिटिव स्टेटमेंट्स चाहिए, ये साइकोलॉजिस्ट कहते हैं. तो आप सोचो कि जब हम एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर में पले बढ़े, एक नकारात्मक माहौल में पड़े बढ़े, तो हमारी सोच सकारात्मक कैसे हो सकती है? और सकारात्मक सोच का होना ही व्यक्ति की कामयाबी का मूल मंत्र है. क्योंकि हर चीज हमारी सोच में है. जैसा हम सोचेंगे वैसे हमारे एक्शंस होंगे, जैसे हमारे एक्शंस होंगे वैसी हमारी हैबिट होगी, और जैसी हमारी हैबिट्स होंगी, आदतें होंगी, वैसा हमारा कैरेक्टर, चरित्र बनेगा, और जैसा हमारा चरित्र होगा वैसा ही हमारा भविष्य बनेगा. इसलिए सोच, थॉट्स, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट. एंड इफ वी कैन हैव पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड इन लाइफ, half the work is done. So it is very important कि हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें. एक छोटा सा उदाहरण यदि मैं आप लोगों को दूं, तो एक संत एक किश्ती में जा रहे थे, और उसी किश्ती में थोड़े से उदंड बालक भी थे. संत की पूजा का समय हुआ तो उन बच्चों ने संत के सिर पर चप्पल मारनी शुरू की. जब संत की यह व्यथा हुई तो भगवान से भी निराश गए. आकाशवाणी हुई कि तू कहे तो मैं कश्ती को पलट दूं. तो संत ने कहा कि हे भगवान, तू भी कैसी शैतानों जैसी बातें करता है. यदि तूने पलटना ही है तो इस नाव को नहीं, इनकी सोच को पलट. सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम अपनी सोच को बदलें. और यदि हम सोच को बदलते हैं, अक्सर मैं कहा करता हूं, सोच को बदलो, सितारे बदल जाएंगे. नजर को बदलो, नजारे बदल जाएंगे. कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं है दोस्त, हवाओं को बदलो, किनारे बदल जाएंगे. The second thing, the most important thing is boldness, निर्भयता. और मैं आपको बताऊं, 90% लोग इंटरव्यू में असफल इसलिए हो जाते हैं क्योंकि उनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता है इंटरव्यू को फेस करने. आता सब कुछ है, बहुत लोग हैं जिन्हें बहुत कुछ आता है, परंतु सिर्फ असफलता का एक ही कारण कि उनके अंदर वो बोल्डनेस नहीं पैदा कर पाए, उनके अंदर वो साहस नहीं पैदा कर पाए, उनके अंदर वो निर्भयता नहीं पैदा कर पाए, जिसकी वजह से वो जीवन में असफल हो जाते. और मैं आपको भारतीय उससे कुछ उदाहरण दूं तो वीर हकीकत का नाम सुना आप लोगों ने? कितने लोगों ने सुना? 4-5 लोग. यही एवरेज है. मैंने 500 की ऑडियंस में पूछो तब भी थोड़े से लोग होते हैं, एक तो 1000 में पूछो तब भी ऐसे ही. वीर हकीकत एक ऐसा छोटा सा बालक था जिसको, जो मां को पूजता था और उस मां को गाली दी गई. तो मौलवी ने उसे बुलाया और उसे कहा
कि क्योंकि वीर हकीकत ने पहले दूसरे धर्म वालों को गाली दी थी, तो मौलवी ने बुलाया और उसे कहा कि तू बहुत ही उदंड बाल है, तू अपना धर्म बदल ले। यदि तू अपना धर्म बदल लेगा तो हम तुझे सजा नहीं देंगे। तो वीर हकीकत ने कहा कि मैं अपना धर्म नहीं बदलूंगा। वीर हकीकत को गर्दन काटने का हुक्म दे दिया गया, वीर हकीकत। और जब उसको लाकर लिटाया गया और उसकी गर्दन काटने लगा जल्लाद, 12 साल का बच्चा था, उसकी कोमल गर्दन देखकर जल्लाद की तलवार कांप गई, जल्लाद का हाथ कांप। तो हकीकत ने उस जल्लाद को कहा कि अपने फर्ज पर गर्दन देते हुए जब मेरी गर्दन नहीं कांप रही तो तेरा हाथ क्यों कांप? यह है बोल्डनेस, यह है निर्भयता कि मौत सामने खड़ी है परंतु वो छोटा सा बच्चा अपनी धर्म को परिवर्तन करने के लिए तैयार नहीं है, अपनी जान देने के लिए तैयार। महाराणा प्रताप सूखी रोटियां खाई परंतु चित्तौड़ का झंडा नीचे नहीं होने दिया। खुदीराम बोस जब बंगाल का विभाजन हुआ 17 साल की उम्र में फांसी। मदन लाल धिंगड़ा 19 साल की उम्र में फांसी। करतार सिंह सराभा अगेन अराउंड 20 इयर्स फांसी देश के लिए। गुरु गोबिंद सिंह 7 साल की उम्र में अपने पिता को प्रेरित किया इस धर्म पर, हिंदू धर्म पर अपना बलिदान देने के लिए। रानी की झांसी, आई नीड नॉट से मोर। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, बुंदेले है बोलों के मुंह हमने सुनकर। एंड थर्ड थिंग विच आई वांट टू डिस्कस विद यू इज कैरेक्टर। हमारा चरित्र, मैंने कहा कि हमारे थॉट से हमारा चरित्र बनता है। चरित्र कैसा हो, यदि इसका मैं उदाहरण दूं, आज हम स्वामी विवेकानंद की इस साल 150वीं शताब्दी मना रहे हैं। स्वामी विवेकानंद के चरित्र का उदाहरण आप लोगों को देता हूं कि स्वामी विवेकानंद जब विदेश में गए तो बहुत लड़कियां, बिकॉज बलिष्ठ थे, लंबे थे, तगड़े थे, बहुत लड़कियां उन पर मरने लगी। और एक लड़की ने तो यहां तक कह दिया कि स्वामी जी मैं आपसे आप जैसे पुत्र की अपेक्षा करती हूं। हमारे यहाँ तो प्रोसेस है ना, माँ बाप लड़की पसंद करेंगे, फिर सगाई होगी, फिर शादी होगी। वहां पे तुरंत उसने कहा स्वामी जी मैं आपसे आपके जैसा बच्चा चाहती हूँ। स्वामी जी वाज टेकन अबैक, ही वाज स्टन्ड कि क्या करूं। उन्होंने, वो लिखते हैं कि मैंने एक लंबी सांस ली, अपने गुरुदेव को याद किया और उसके पश्चात उस युवती से कहा कि मैं आपकी गोद में बैठ जाता हूँ और आपको बड़े मान और सत्कार के साथ माँ पुकारता हूँ। मैं आपका बेटा, आप मेरी। You see, that is character. अन्यथा हिंदुस्तान तो सफेद चमड़ी पे मरता ही मरता है। जहां चला जाए आदमी, you see, बाहर जाकर भी विदेशों की हवा इस व्यक्ति को छू नहीं पाई। इतना चरित्र। और शिवाजी मराठा का चरित्र, उन दिनों में लूटपाट के साथ औरतें भी आती थी, औरतों को भी लूटपाट का सामान समझा जाता। और शिवाजी मराठा कहते हैं कि उनके जब सेनापति भी कहीं से लूट के लाए तो वहां की बेगम को भी ले आए। जब सेनापति ने कहा महाराज आपके लिए भेंट लाया हूं, पालकी का पर्दा हटाया गया तो अंदर बिलाल बेगम। तो शिवाजी मराठा ने उस बिलाल बेगम को देखकर 2 ही शब्द कहे, काश मेरी मां भी इतनी सुंदर। शिवाजी कुरूप थे, शक्ल बड़ी भिंडंगी थी और बिलाल बेगम को देखकर सिर्फ इतना ही कहा कि काश मेरी मां भी इतनी सुंदर होती। ऐसे चरित्रवान व्यक्तियों के देश में हम लोग रहते हैं और उनके चरित्र को हम अपनाएं, बच्चों तक पहुंचाएं तो कामयाबी हमारे कदम चूमे। कंपैशन, whatever we become in our life, यदि हमारे अंदर संवेदना नहीं है, यदि हमारे अंदर सहानुभूति नहीं है तो हमारी सफलता 2 कौड़ी की। मैं डॉक्टर बन जाऊं, यदि मेरे अंदर संवेदना नहीं है तो सर्जन और कसाई में कोई फर्क नहीं है। फर्क क्या चीज करती है? सिर्फ मेरी संवेदना, कि मैं मरीज के अंदर ये देखो कि जैसे मैं ही हूं। या पेशेंट अगर ओल्ड एज की है तो मुझे दिखाई दे कि काश मेरी मां ही इसके स्थान पर होती तो मैं कैसा बिहेव करता।
वैसा बिहेवियर, वैसी संवेदना, वैसी सहानुभूति, वैसी समानुभूति यदि मेरे अंदर नहीं हो सकती तो मेरा डॉक्टर बनना बेकार है। आप लोग टीचर्स हैं, यदि आप अपने स्टूडेंट के प्रति वही संवेदना नहीं रख सकते जो आप अपने बच्चे के लिए रखते हैं तो आपका टीचर बनना बेकार। और स्वामी जी के जीवन से यदि मैं आपको एक बात बताऊं, स्वामी जी न केवल इस देश के बारे में चिंतित थे, पूरे विश्व के बारे में चिंतित थे। कहते हैं कि एक दिन स्वामी जी अपने आश्रम में रात को 2 बजे उठे, सडनली विद ए हैंड ऑन हिज चेस्ट, अपनी छाती पर हाथ रखा और बाहर बरामदे में घूमने लगे। लोगों ने पूछा, सोचा कि शायद इनको कोई तकलीफ है। उन्होंने कहा, स्वामी जी आप ठीक तो हैं? स्वामी जी ने कहा, मैं तो ठीक हूं, परंतु विश्व में कहीं ना कहीं कुछ हुआ जरूर है। उस समय तो उनके सब गुरु भाइयों ने, जितने लोग आश्रम में थे, उनकी बात को सुना अनसुना कर दिया। बट कहते हैं जब सुबह के समाचार पत्र आए तो वही समय था फिजी में, जो कि हजारों किलोमीटर दूर भारत से एक द्वीप है, वहां पर एक ज्वालामुखी फटा। उसी समय जिस समय स्वामी विवेकानंद अपनी छाती पर हाथ रखे, यानी उस व्यक्ति को वहां के लोगों के दुख ने संप्रेषित किया, वहां के भाव चले और उस व्यक्ति के दिल में यहां हिंदुस्तान में बैठे चिंता हुई, यहां पर भाव पैदा हुए। ये है सही की संवेदना। वो संवेदना जो दूर बैठे व्यक्ति के दुख में भी हमें दुखी करे, हमें व्यथित करे, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है, अन्यथा नहीं। इसीलिए मैंने लिखा, गमों की आंच पर आंसू उबाल कर देखो, बनेंगे रंग किसी पर डाल कर देखो, तुम्हारे दिल की पीड़ा भी कम होगी जरूर, किसी के पांव का कांटा निकाल कर। Certainly, the compassion is very important. If we do not have compassion, our success is meaningless. So therefore, my friends, my request to you is, whatever we are, wherever we are, we must continue to have compassion. And if we are compassionate, success will be ours. Then confusion prevails in the society. People are confused. एंड तक पता ही नहीं लगता डॉक्टर बनना है कि इंजीनियर बनना है, जब तक 10वीं क्लास आ जाती है। 11th में चूज करने लगते। डॉक्टर बन जाए तो डॉक्टर सेटिस्फाइड नहीं है, इंजीनियर बन जाए तो इंजीनियर सेटिस्फाइड नहीं है, क्योंकि पराई थाली में लड्डू बड़ा लगता है। हम कंफ्यूज रहते हैं। हमारी सिचुएशन वैसी ही है जैसे कि एक दार्शनिक गधे की हुई। गधे भी कोई पूछ सकता है, मेरे से भी दार्शनिक हो सकते हैं, फिलोसफर हो सकते हैं, क्योंकि सोच तो उनमें भी आती है। आप मेरे को एक बात बताओ, यदि एक सिचुएशन हो, एक गधा खड़ा, उसके आगे फिलोसफर गधा, 2 ढेरियां आप घास की लगाओ, एक तो हरी घास हो जो थोड़ी हो और एक सूखी घास जो ज्यादा हो। अब बताओ गधा कौन सी घास खाएगा? He is right. गधा नहीं, घास तो खाता है गधा। गधा घास खाता है, ऐसा नहीं है। गधा क्या है कि गधा एक बार तो इधर देखेगा, हरी हरी घास है, पर फिर उसको लगेगा ये थोड़ी है, फिर वो अपनी गर्दन दूसरी तरफ मोड़ेगा कि बहुत ज्यादा घास है पर सूखी है, फिर गर्दन हरी की तरफ कर लेगा, फिर थोड़ी देर में सूखी की तरफ। वो कंफ्यूज रहेगा और भूख से चक्कर खा के गिर जाएगा पर घास नहीं खाएगा। यही हाल हमारा है। हम होल लाइफ कंफ्यूज्ड है। लेडीज कंफ्यूज्ड है कि अभी अच्छी गृहिणी बने या अच्छी टीचर बने। आदमी कंफ्यूज्ड है कि अभी मैं पैसे कमाऊं घर के लिए या समाज के लिए कुछ करूं। हर आदमी डॉक्टर बन के भी सेटिस्फाइड नहीं, इंजीनियर बन के सेटिस्फाइड नहीं, टीचर बन के सेटिस्फाइड नहीं। मैंने सुना भी एक टीचर ने कहा कि मैं टाटा बिरला बन सकता हूं और टाटा बिरला से ज्यादा कमा सकता हूं। किसी ने कहा भी तू टाटा बिरला से ज्यादा कैसे कमा लेगा, उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है बिजनेस। तो मास्टर ने कहा कि मैं ट्यूशन भी तो कमाऊंगा। So that kind of a situation prevails in our country. That kind of thought process continues to be in our country, but we have to select a goal. We have to select a line for us and we have to move straight on it. Neither this way nor that way. कोल्लू के बैल पे दोनों तरफ वो पट्टियां लगा देते हैं
ताकि वो घूमता रहे। मैं ये नहीं कहता कि हम कोल्लू के बैल की तरह पिसें या कोल्लू के बैल की तरह घूमें, बट सर्टेनली मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो गोल या टारगेट या एम या ऑब्जेक्टिव हमने फिक्स कर लिया, हम उसकी तरफ निरंतर बढ़ते चलें, निरंतर चलते चलें, सफलता हमारे कदम चूमेगी। ये मैंने लिखा, पहले हर शय को हम आवाज किया जाता है। जब भी कोई म्यूजिक कंसर्ट हो तो पहले हर शय को हम आवाज किया जाता है, फिर कहीं नगमे का आगाज किया जाता है। तो इसलिए कंफ्यूजन को दूर करना इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट इज टाइम दैट वी बिकम हार्मोनियस विद लाइफ, वी make synchronicity in our life, we make homogeneity in our life, then only we can succeed, otherwise we will never be successful. Then desire and determination, it is very important. As I said, people dream, but there are very few people who do. What differentiates between dreaming and doing is the desire and determination. This is the gap and we have to fill up this gap. जो लोग इस डिजायर और डिटर्मिनेशन के गैप से पूरा कर सकते हैं अपने ड्रीम्स को, वही लोग कामयाब हो सकते हैं। और हमारे अंदर इच्छा शक्ति कितनी हो किसी चीज को पाने के लिए। फरीद के पास, फरीद एक खट्टे खट्टे संत थे, सूफी संत थे। एक व्यक्ति गया, कहता भगवान को जानना चाहता हूं। फरीद ने कहा सुबह सुबह नदी पर आ जाओ। अब उस व्यक्ति ने कहा ये पागल हो गया संत, नदी का ज्ञान से क्या संबंध है? मैं तो इनके पास ज्ञान पाने आया हूं, ये कह रहे नदी पे आ जाइए सुबह सुबह 4 बजे। फरीद उसे नदी पर ले गए और दोनों नदी के बीच में गए। फरीद ने उसे जोर से पकड़ा और उसे पानी के अंदर ले गया। अब वो व्यक्ति कहे तुम संत हो कसाई हो? आया तो तुम्हारे से ज्ञान पाने हो और तुम मुझे पानी के अंदर डुबो रहे हो। और फरीद उसे डुबोते रहे जब तक वो व्यक्ति छटपटा कर एक बार बाहर निकला। तो फरीद ने कहा कि जब मैं तुम्हें अंदर दबा रहा था तो तुम्हारी क्या कामना थी, क्या इच्छा थी? उसने कहा कि एक ही इच्छा थी कि किसी तरह से सांस आ जाए। तो फरीद ने कहा जिस दिन इतनी इच्छा ज्ञान प्राप्ति के लिए तुम्हारे अंदर होगी, उस दिन तुम्हें ज्ञान प्राप्ति से कोई रोक नहीं सकता। ईगो बड़ी खतरनाक चीज है। 17.5 करोड़ लोग 20वीं शताब्दी में मारे गए किसी न किसी नाम पर, धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, संप्रदाय के नाम पर। धर्म की लड़ाइयां क्यों होती हैं? संप्रदाय की लड़ाइयां क्यों होती हैं? जाति की लड़ाइयां क्यों होती हैं? केवल और केवल ईगो की वजह से। और जिस दिन हम इस ईगो को समाप्त कर देंगे, उस दिन सफलता हमारी होगी निश्चित रूप से। सिर्फ अपने अहंकार को सहजता में बदलने की आवश्यकता है। यदि हम अपने अहंकार को सहजता में बदल सकते हैं, सिंप्लिसिटी में बदल सकते हैं, तो निश्चित तौर पर फोकस। आपको ईगो कितना भी सुन ले। Thank you. Focus. You see, focus in life is very important. आप लोगों में से कितनों ने सर्कस देखी? सब ने देखी। पहला और आखिरी सीन क्या होता है? हैं? कर्टन खुलना और कर्टन। मैं सीन पूछ रहा हूँ, कर्टन खुलने पे कौन सा सीन आता है सामने? जो देखो, 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं उसमें जिनमें उन्हें समय लगता है। एक तो वो जाल लगाकर ऊपर से जिम्नास्ट घूमते फिरते रहते हैं। एक जिस सर्कस का आखिरी शो होगा, अगली का वो पहला होगा। या शेरों का रिंग ऑफ लायंस, या वो पहला होगा या आखिरी होगा। जिस सर्कस का आखिरी होगा, दूसरी का पहला होगा। आपने वो रिंग देखा? उस रिंग में लगभग 20 शेर होते हैं, कहीं पे 25 भी होते हैं, कहीं पे हो सकता है 15 भी होते हैं, परंतु अंदर एक रिंग मास्टर होता है। कभी सोचा कि एक रिंग मास्टर और 20 शेर, जिन्हें हम जंगल का राजा कहते हैं, कैसे वो रिंग मास्टर उनको कंट्रोल कर सकता है? किसी ने सोचा? किसी ने इस मनोविज्ञान पर ध्यान दिया?
अगली बार सर्कस में जाएं तो थोड़ा ध्यान से देखना। रिंग मास्टर एक हाथ में कोड़ा रखता है और दूसरे हाथ में जो वहीं पर स्टूल पड़ा उसको उठा लेता है वो, और उसकी टांगे वो शेर की तरफ करता है। जो शेर उसको खाने को पड़ता है ना, उसी शेर की तरफ वो स्टूल की टांगे करता है। अब शेर को क्या होता है कि शेर ये नहीं डिसाइड कर पाता कि वार इस टांग से आएगा, कि इससे आएगा, कि इससे आएगा या इससे आएगा। उसका फोकस टूट जाता है। जब उसका फोकस टूटता है तो उसकी बॉडी की पावर बिल्कुल कम हो जाती है। जो पूरी तरह से उत्तेजित था, पूरी ऊर्जा उसने अपनी उसके ऊपर अटैक करने के लिए लगाई हुई थी, वो ऊर्जा निष्क्रिय हो जाती है। और जब उसका फोकस टूटता है तो वो जंगल का राजा शेर या जंगल के राजे 20 शेर एक रिंग मास्टर के इशारे पर काम करने लगते हैं। दिस इज द इंपॉर्टेंस ऑफ फोकस इन लाइफ। और यदि हम किसी चीज को ध्यान से कर सकते हैं तो हम जीवन में वो पा सकते हैं जो कोई व्यक्ति पा नहीं सकता। हम मानव से महामानव बन सकते हैं। ऐसा कहते हैं स्वामी विवेकानंद जब शिकागो में गए तो शिकागो के पास की गलियों में कहीं घूम रहे थे, कुछ बच्चे निशाना लगा रहे थे। उन बच्चों का निशाना लग नहीं रहा था। स्वामी जी उनको देखकर हंसे थोड़ी देर, तो बच्चों ने, अमेरिका के बच्चे, कहा ओए हमारे पे हंसता, तू लगा के दिखा। स्वामी जी को जब बच्चों ने ये कहा कि तू लगा के दिखा, तो ये वो स्टंट। उन्होंने कहा तुम लगा सकते हो निशाना? स्वामी जी, स्वामी कभी बंदूक कहां से पकड़नी, पर उन्होंने कहा नहीं मैं लगा सकता हूं। कहते हैं उन्होंने वो बंदूक ली उन बच्चों से और सातों की सातों गोलियां बिल्कुल बुल में लगाई। बच्चे हैरान हुए। उन्होंने कहा तुमने जरूर सीखा कहीं ना कहीं चलाना। तो स्वामी जी ने कहा मैंने अपने जीवन में पहली बार चलाया। तो उन बच्चों ने कहा कि तुमने कैसे सीखा, कैसे किया? तो स्वामी जी ने कहा केवल एक ही चीज, कि मैंने अपने मन के एकाग्र करना सीखा, मन की एकाग्रता को पाया। और मन की एकाग्रता से ये सब संभव है। मन की एकाग्रता से स्वामी जी ने अपनी फोटोजेनिक मेमोरी बनाई। कहते हैं 1100 पेज की पुस्तक 11 मिनट में पढ़ देते थे। ब्रिटिश एनसाइक्लोपीडिया उन्हें पूरे से याद था और लोगों ने उनके इस बारे में बहुत टेस्ट लिए, बहुत कुछ पूछा, बहुत कुछ प्रश्न किए उन किताबों से, जिन किताबों के बारे में कहते थे उन्हें याद। दिस इज व्हाट वी कैन अटेन विद फोकस। So focus is very important. Sunlight you see is present all around. But if you put a magnifying glass in between a lens, a convex lens, it will burn the paper. So the idea is to focus the energy. Our body is full of energy. हम उस एनर्जी को किस तरफ लगाएं ये इंपॉर्टेंट है। हम उस एनर्जी का अधोगमन भी कर सकते हैं, हम उस एनर्जी का ऊर्ध्वगमन भी कर सकते हैं। यदि वो ऊर्ध्वगमन होगी, अपगामी होगी, ऊपर की तरफ जाएगी, तो वो निश्चित रूप पर हमारे अंदर ऐसी शक्तियों को जागृत करेगी जिन शक्तियों की बात मैं स्वामी विवेकानंद के बारे में। और यदि हम नीचे की तरफ उस ऊर्जा को चलाएंगे तो हम एक मानव बनकर रह जाएंगे। हम अपने जीवन में महामानव नहीं बन सकते। और स्वामी विवेकानंद ने कहा कि हम सब अमृत के पुत्र, हम सब के अंदर दिव्य शक्ति है, हम सब के अंदर सुप्त शक्ति है। आवश्यकता केवल उन सुप्त शक्तियों को जागृत करने की है। और उन्होंने ये भी कहा कि शिक्षा का केवल और केवल एक ही उद्देश्य होना चाहिए, वो है मन को एकाग्र करना सिखाना। और स्वामी जी ने यहां तक लिखा कि यदि मुझे दोबारा पढ़ने का मौका मिले तो मैं स्कूल कॉलेज में जाकर जो ये पुस्तकें हमें पढ़ाई जाती हैं इनको उठाकर बाहर फेंक दूंगा और अपने अध्यापकों से केवल एक ही बात कहूंगा कि मुझे मन की एकाग्रता सिखाई जाए, तथ्यों का संकलन नहीं। This is what you can achieve with focus and this is very important to achieve in life. गालिब का एक शेर है, दीदार की तलब है तो नजरें जमाए रखना गालिब, पर्दा हो या नकाब सरकता जरूर है। Goal setting. It is very important to set a goal for you in your life. मैं अक्सर लोगों से पूछता हूं कि what is your goal? And I do not get any specific answers. कभी भी नहीं मिलते मेरे को स्पेसिफिक आंसर कि कोई व्यक्ति ऐसे खड़े होकर बिल्कुल ठीक से बताए कि ये मेरी लाइफ का ध्येय नहीं बताता। हमने यहां से दिल्ली जाना है, टिकट लेंगे, टिकट पे लिखा होगा यहां से 8वां स्टेशन दिल्ली है, इतनी प्राइस है, इतनी डेट है, सब कुछ लिखा होगा।
पर हम अपनी लाइफ के टिकट के बारे में कुछ सोचते ही नहीं, कुछ लिखते ही नहीं, कोई तय ही नहीं करते कि इस डेट तक मैं ये करूंगा, इस डेट तक मैं ये करूंगा, उसके बाद मैं ये करूंगा, कोई मेरा सेट पैटर्न नहीं। और जब तक लाइफ में हम गोल सेट करना नहीं सीखते, सफलता का तो प्रश्न ही नहीं। इसलिए आप अपने जाकर लाइफ में छोटे छोटे गोल, पहले शॉर्ट टर्म, फिर मिड टर्म, फिर लॉन्ग टर्म गोल्स हम अपनी लाइफ पे डिसाइड करें, जाकर अपनी डायरी में लिख दें। और जिस दिन हम ये लिखना शुरू करेंगे उस दिन हमारा जीवन बदलने लगेगा, उस दिन हमारे जीवन में क्रांति होने लगेगी। और मैंने जैसे लिखा, गोल्स नीड टू बी स्मार्ट, दे हैव टू बी स्पेसिफिक, दे हैव टू बी मेजरेबल, दे हैव टू बी अचीवेबल, they have to be realistic, and they have to be time bound. If that is the case, then only we can set the goals. हम बहुत लोग बहुत एक्टिविटी करते हैं but without any accomplishment. क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा पद्धति ने दिया ही हमें ये। नर्सरी में, प्ले स्कूल में बच्चा जाता है, what do we give him? आप बताओ, छोटे से बच्चे को हम कहाँ बिठाते हैं? रॉकिंग हॉर्स पे, है ना? ओनली रॉक्स, हिलता रहता घोड़ा, पर जाता कहीं नहीं है, पहुंचता कहीं नहीं। मतलब हमने एक्टिविटी सिखाई, अकम्प्लिशमेंट नहीं सिखाई। यही हमारे खिलौने हैं सारे। ये आयरनी है इस देश की। मैं अभी तो मैंने घर शिफ्ट कर लिया, पहले मैं अस्तलपुर में ही रहता था। तो जब भी मैं गाड़ी निकाल के सड़क पे जाता तो एक कुत्ता मेरी गाड़ी के साथ साथ भागता, हर बार का था। मेरा बेटा छोटा सा था, मेरे से पूछा, पापा will he able to catch us someday? किसी दिन ये हमें पकड़ पाएगा? तो मैंने कहा कि ये नहीं मैं जानता कि ये हमें पकड़ पाएगा कि नहीं पाएगा, परंतु इतना मैं जानता हूं कि ये हमें पकड़ भी लेगा तो पाएगा क्या? Supposing he catches us, what is he going to gain? Nothing at all. So his activity is too much, but there is no accomplishment. कैटरपिलर्स देखे आपने बायोलॉजी के कुछ स्टूडेंट्स हैं? कैटरपिलर एक के पीछे एक चलते हैं, ऐसे जैसे चींटियां चलती है ना, एक दूसरे को पीछे सूंघते चलते हैं, ऐसे ऐसे। आप वो चील के कांटे खाते हैं, चील का जो पेड़ होता है ना, उसके चीर के पेड़ के कांटे खाते, बीच में रख दो उसका भोजन और उनको ऐसे पंक्ति में छोड़ दो, वो घूमते रहेंगे घूमते रहेंगे। फूड की स्मेल भी आ रही है पर कोई लाइन नहीं तोड़ना चाहता, भूखे रह जाएंगे। एक्टिविटी बहुत है पर भोजन नहीं है। सो इट इज आवर चॉइस कि हम कैटरपिलर की तरह या उस डॉग की तरह एमलेस वॉन्डरर बनना चाहते हैं या लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हैं। यदि हमें अचीव करना है तो वी हैव टू सेट द गोल्स। स्वामी विवेकानंद ने कहा, उठो, जागो और लक्ष्य की प्राप्ति तक रुको मत। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। सब टीचर्स पढ़ाते हैं, सब लोग पढ़ाते हैं, बट फॉलो कोई नहीं करता। Examples are well known to you. I don't want to deliberate more on it. Humility is very important. विनम्रता, बिना विनम्रता के व्यक्ति जीवन में कुछ भी नहीं कर सकता। जब हम छोटे थे, स्कूल में पढ़ते थे, तो एक श्लोक आता था, नमन्ति फलिनो वृक्षा नमन्ति गुणिनो जना शुष्क वृक्षाश्च मूर्खाश्च ना नमन्ति कदाचन। फलों वाला पेड़ झुक जाता है, गुणी व्यक्ति झुक जाता है, सूखा पेड़ और मूर्ख व्यक्ति कभी झुकते नहीं। टूट सकते हैं पर झुकते नहीं। हमें जीवन में झुकना आना चाहिए। भगवान कृष्ण ने भी महाभारत में जब युधिष्ठिर का राजसूय यज्ञ हो रहा था तो सबको ड्यूटियां बांटी जा रही। भगवान कृष्ण ने जूठी पत्तल उठाने का काम लिया। दिस इज ग्रेटनेस, दिस इज ह्यूमैनिटी। आप छोटे से छोटा काम यदि बड़े होकर भी खुद कर सकते हैं तो लोग आपका ज्यादा सम्मान करेंगे। दैट इज अबाउट ह्यूमैनिटी। इनिशिएटिव इन लाइफ इज वेरी इंपॉर्टेंट। लोग पीछे चलने वालों की भीड़ है आजकल। एक जना मशाल उठा ले, पीछे चलने वाले बहुत लोग हो जाते हैं। परंतु मशाल उठाए कौन? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? दिस इज इंपॉर्टेंट। इनिशिएटिव कौन लेता है? दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और जो व्यक्ति इनिशिएटिव लेते हैं वही लोग ट्रेंड सेटर्स होते हैं, वही लोग सक्सेसफुल होते हैं।
इनिशिएटिव का अगर मैं आपको हरियाणा का एक उदाहरण दूं, तो कहते हैं कि रोहतक की एक लड़की ब्याह के मेवात चली गई। रोहतक का है अभी सारे रोहतक के। मेवात में चली गई, रोहतक एजुकेशन में शुरू से आगे। और वहां पर कहते हैं कि एक प्रथा थी कि लाइट थी नहीं वहां पर। इधर तो लाइट बहुत पहले आ गई गाँव में, उधर नहीं थी लाइट, अंधेरा रहता था। तो उन्होंने एक प्रथा चलाई कि हर आदमी अंधेरे की एक टोकरी भरे और पहाड़ी के उस तरफ डाले। भी जैसे मिट्टी खत्म करनी है, ऐसे अंधेरा खत्म करने का उन्होंने सोचा। अब लगते रहे सालों साल की प्रथा। बहू भी जब आई, हमारे यहाँ बहू आए तो क्या करते हैं, चौके में चढ़ाते हैं, मीठा बनवाते हैं, हलवा बनाते हैं, कोई अच्छी चीज बनवाते हैं उससे। तो वो कहते हैं चल भाई टोकरी उठा और पहाड़ी के परली तरफ डाल। पर ये रोहतक की थी। इसने अपने सामान खोला, एक मोमबत्ती निकाली, एक दिया सलाई निकाली, दिया सलाई जलाई, मोमबत्ती लगाई, अंधेरा दूर हो गया। सो दिस इज इनिशिएटिव। इस इनिशिएटिव से, इस पहल से, इस इनोवेशन से यदि हम काम करेंगे तो हम जीवन में हमेशा कामयाब होंगे। हम जीवन में कुछ भी करें, यदि हमारे अंदर राष्ट्रीयता नहीं, यदि देश हमारे लिए पहले नहीं है, तो हमारा होना या ना होना सब बेकार है। आज मैं स्वामी विवेकानंद के थोड़े ज्यादा उदाहरण दे रहा हूं क्योंकि उनकी सार्धशती चल रही है, उनका 150वां जन्मदिन चल रहा है और मेरे ऊपर हरियाणा में उनका काम करने का दायित्व है। स्वामी विवेकानंद जब विदेशों में गए तो उनका चोगा देखकर, संत की वेशभूषा देखकर लोग उनके पीछे भागते हुर्र करते हुए। स्वामी जी को बड़ा बुरा लगता था, उनके साथ जो लोग रहते थे उनको भी बड़ा लगता था कि हुर्रा हुर्रा होता है, कैसे कपड़े, क्यों ना स्वामी जी के कपड़े बदलवा। उन्होंने स्वामी जी से रिक्वेस्ट की कि स्वामी जी जैसा देश वैसा भेष, आप भी अपना परिधान बदल लो, क्यों ये लंबा चोगा लटकाए हो, कोट पैंट डाल। स्वामी जी ने भी एक लंबा कोट सिलवाया, पैंट डाली और अगले दिन की सभा में फिर चले गए। और स्वामी जी जिस वेशभूषा में आप देख सकते हैं खड़े हैं, तो किसी ने कहा कि स्वामी जी जब आपने कोट भी डाला, पैंट भी डाली, तो आपने ये साफा क्यों लगा लिया, यहाँ भी हैट लगा लेते। तो स्वामी जी ने कहा कि मस्तक पर तो मेरा भारत रहेगा, मस्तक पर तो ये है राष्ट्रीयता व्यक्ति की, कि मेरे विचार में, मेरे मस्तिष्क में, मेरे भाव में मेरा देश रहे, ये उनका संदेश। और कहते हैं कि जब विदेशों में 5 साल रहने के बाद पुनः भारत की भूमि पर उतरे तो पत्रकारों ने प्रश्न किया। प्रश्न क्या था कि स्वामी जी 5 साल भोग विलास की जिंदगी में रहे, वहां पे फिजिकल सारी की सारी सब कुछ मिलता है, और फिर अब आपको धूल भरे भारत में आकर कैसे लगता हो। स्वामी जी ने कहा कि जब मैं इस देश से गया था तो मैं इस देश से प्यार करता था, और 5 साल विदेशों में रहने के बाद जब मैं वापस आया तो मैं इस देश से प्यार नहीं करता, इस देश की पूजा कर रहा हूं। इस देश का कण कण मेरे लिए पूजनीय है। ये उद्गार थे उस व्यक्ति के। और आज हम पहले हैं, देश बाद में। जिस दिन हमारी सोच ये होगी कि देश पहले, कोई भी बड़ा व्यक्ति देश को पहले रखकर, देश को पहले बिना रखे बड़ा नहीं होगा। हर व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया ने याद किया, उसने सबसे पहले अपने देश को सामने रखा, अपने समाज को सामने रखा। और जो व्यक्ति देश और समाज को सामने रखते हैं, वही लोग अपने जीवन में सफल होते हैं। आज पूर्ण तरह से ईर्ष्या का माहौल है। हर आदमी एक दूसरे से ईर्ष्या करता है। हम एक दूसरे को नीचे खींचकर ऊपर जाना चाहते हैं। यह हमारी मेंटालिटी है, विच इज कॉल्ड क्रैब मेंटालिटी, कि हम दूसरे को नीचे खींचना चाहते हैं, आप स्वयं से ऊपर नहीं उठना चाहते। और इस सोच के ऊपर यदि हम काम करेंगे तो हम जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकते। बीरबल से एक बार अकबर ने पूछा कि बीरबल तुम्हारे हाथों पे बाल क्यों नहीं? प्रश्न बड़ा टेढ़ा था, पर बीरबल तो बीरबल है। बीरबल ने कहा महाराज आप मुझे देते ही इतना कि मैं सारा दिन लेता रहता हूं, समय कम मिलता है बालों को उगने का। तो अकबर भी अकबर है। अकबर ने कहा तेरी बात तो ठीक है, पर मेरी हथेलियों पर बाल क्यों नहीं? तो बीरबल ने कहा महाराज आप देते हो, मैं लेता हूं, इसलिए ना आपकी हथेली पर बाल, ना मेरी हथेली पर बाल।
तो अकबर तो सवाल नहीं खत्म होते ना। अकबर ने कहा चल तेरी मेरी बात तो ठीक है, पर ये सब लोगों की हथेलियों पर भी बाल क्यों नहीं है, सब चेक कर लो किसी के हैं तो नहीं। तो उसने कहा भी ये बताओ भी तुम्हारी हथेली पर, बाकी सबकी हथेली पर बाल क्यों नहीं है। तो बीरबल ने कहा कि महाराज आप देते हैं, मैं लेता हूं, और ये बाकी सब जलते हैं, हाथ मलते हैं। इसलिए यदि आप लोग जलते नहीं तो आप भी ताली बजाओ, नहीं तो बाल उठाएंगे। एक अच्छी आदत है ताकि हमारी हथेली पर बाल ना उगे, विच विल शो कि हम ईर्ष्या से पीड़ित नहीं है। इसलिए ताली बजाना बहुत जरूरी है। इसलिए दूसरों के प्रति जेलसी रखना बिल्कुल नहीं, हमें स्वयं को बुलंद करना है, किसी से ईर्ष्या रख के हमें आगे नहीं बढ़ना। और जब हमारे अंदर ईर्ष्या का भाव समाप्त होगा, उस दिन हम अपने जीवन में सफलता अर्जित करेंगे। नॉलेज, बहुत लोग पीएचडी आज और कई पीएचडी हैं, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन इकट्ठी किए हुए अपने अंदर, रियल ज्ञान नहीं है, नॉलेज नहीं। पीएचडी का कोई कैंडिडेट आया ना, मान लो हिंदी का आ गया, तो मैं उसे यही कहता हूं, मेरा सवाल यही होता है काका का सुना, तो वो मेरे को कहेगा सर मैं आउट ऑफ टच हूं। अब तुम मेरे को बताओ कि काका का सुनाने में क्या आउट ऑफ टच है। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड, पीएचडी इंग्लिश कई बार एबीसी भी नहीं सुना पाता। This is the experience which I have gained during hundreds and hundreds of interviews. That people have long degrees, but not even a small thing as knowledge. हमारी सिर्फ खोखली ऊपर का सब कुछ है, अंदर कुछ नहीं है, सब बाहर, और उसी ईगो हमें खाई बैठी है, मैं इतना बड़ा प्रोफेसर, मैं इतना बड़ा वाइस चांसलर, और है कुछ नहीं अंदर। मैं तुम्हें उदाहरण देता हूँ, एक बड़ा सटीक उदाहरण। लॉरेंस नाम का एक फिलोसफर हुआ। फिलोसफर उल्टी सीधी बातें करने में मस्त होते हैं। उसके दिमाग में एक दिन आ गई कि राजस्थान का है क्या कोई, राजस्थान के 15 आदमियों को पेरिस घुमा के ला। अब राजस्थान के आदमी को पेरिस ले गया ये, और अच्छे होटल में जाकर उन्हें रुका और कहा कि शाम को आईफिल टावर देखने चलेंगे, क्योंकि शाम की लाइटिंग आईफिल टावर पे बड़ी अच्छी होती है, तुम लोग तैयार होके 5 बजे बिल्कुल ठीक होटल की लॉबी में आ जाना, मैं बस तैयार हूँ। 5 बजे, 6 बजे, 7 बजे, 8 बजे, कोई नीचे ही ना आए, आईफिल टावर का बंद होने का टाइम आ गया। लॉरेंस ऊपर गया, उसने देखा कि सब लोग बाथरूम में नहा रहे। राजस्थान का आदमी कहीं पानी देखा ही नहीं, पहली बार पानी मिला तो नहा रहे, क्योंकि जिस आदमी को जिस चीज का अभाव होगा, जिस चीज की कमी होगी, वो उसी को पूर्ण करने की कोशिश करेगा। वो नहा रहे, उसने कहा भी चलना नहीं, कहता ईसा जीसा तो कदे आया को नहीं भाई, नहा दे तुम। वो अपना नहा दे। 15 दिन वो उन्हें रोज रोस्टर दे, शेड्यूल दे कि भाई आज यहाँ चलेंगे, आज वहां चलेंगे, आज शॉन्ज़-एलीज़े चलेंगे, आज मतलब सो मेनी थिंग्स, वार मेमोरियल चलेंगे, पर वो लोग कहीं जाने को तैयार नहीं, सिर्फ नहाए 15। आखिरी दिन वापस फ्लाइट का आ गया, उसने कहा भी देखो 12 बजे की फ्लाइट है, 9 बजे सब लोग लॉबी में आ गए, कोई नहीं है। 10 बजे वो ऊपर गया तो वो क्या देखता है कि वो आदमी टूटियां खोल रहे हैं, टैप्स, दे आर ओपनिंग द टैप्स, वहां से निकाल रहे हैं उनको, खोल रहे हैं। उसने कहा भी इनका क्या करोगे, कहता है अपने राजस्थान में ले जाके पानी ले आएंगे। यानी उन व्यक्तियों को ये नहीं पता कि पानी टूटी से आएगा कि टंकी से आएगा। ये इंपॉर्टेंट है इंफॉर्मेशन और नॉलेज में, कि ज्ञान अंदर से आता है और इंफॉर्मेशन बाहर से आती है। वी ओनली वर्क ऑन लर्निंग एंड वी डू नॉट वर्क ऑन अनलर्निंग, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इट इज सेड that people who will be successful, who will be the people who will be successful in 21st century, they are the people who will learn, unlearn and relearn. They will be the people. This century belongs to those people, those who will learn, unlearn and relearn. This century belongs to them. So that kind of knowledge we have to gain. और वो सिर्फ अनलर्निंग से आती है, लर्निंग से नहीं आती। लर्निंग से हम केवल स्टफिंग करते हैं, क्रैमिंग से केवल हम स्टफिंग करते हैं, अपनी ब्रेन की मेमोरी को पूरा भर देते हैं, जैसे एक फिक्स्ड मेमोरी है ना, भर देते हैं उसे, जगह ही नहीं बचती कोई नई चीज आने की।
ओस्पेंस्की कहते हैं बहुत बड़ा मैथमेटिशियन था। गुरजेफ के पास गया, गुरजेफ एक बहुत बड़े संत थे, और उन्हें कहा कि गुरजेफ मैं बहुत तंग आ चुका हूँ, मैंने इतनी मैथमेटिक्स की रिसर्च की और जितना मैथमेटिक्स का कंट्रीब्यूशन ओस्पेंस्की का है, जो लोग मैथमेटिक्स के हैं वो जानते होंगे, बिकॉज आई हैव बीन टोल्ड इट्स अ डाइवर्स ग्रुप। उन्होंने कहा ओस्पेंस्की ने गुरजेफ को कि मैं आपसे ज्ञान लेने आया। ओस्पेंस्की को गुरजेफ ने कहा कि कल सुबह पहाड़ी पे आ जाना। पहले मैंने तुम्हें बताया ना पानी में आ जाना खरीदने का। गुरजेफ ने कहा पहाड़ी पे आ जाना। जब पहाड़ी पे ओस्पेंस्की गया पसीने बहाता हुआ ठंड के टाइम में, तो गुरजेफ ने कहा रुको मैं तुम्हारे लिए चाय बना कर लाया। गुरजेफ चाय बनाकर लाए और उसको दे दिया कप, और ऊपर से केतली से चाय डालते रहे और मुंह पर ही फिर लिया। ओस्पेंस्की का कप ओवरफ्लो होने लगा। ओस्पेंस्की ने कहा गुरजेफ क्या करते हो, कप भर गया, क्यों डाले जा रहे हो? उसने कहा मैं तेरे को बस इतना ही सिखाना चाहता हूँ कि तू मेरे पास भरे कप से आया, जब तक तू इसे खाली करके नहीं आएगा तब तक मैं तेरा कुछ नहीं कर सकता। गो एंड अनलर्न योरसेल्फ, देन ओनली यू कैन गेट नॉलेज। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनलर्निंग योरसेल्फ। आज वो काबिल हुए जो कभी काबिल न थे, मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में शामिल। दिस इज द यूजुअल स्टोरी। लॉयल्टी, लॉयल्टी इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमारे यहाँ कहा जाता है पड़ा पत्थर भी भारी होता है। आज मुझे 25वां साल चल रहा है जिस इंस्टीट्यूशन में मैं हूँ, और कभी मुझे एक भी सिंगल थॉट नहीं आया कि मैं इस इंस्टीट्यूशन को बदलूं। There were n number of offers, not only from India but from abroad also, and at a salary which was 10 or 20 times more than the salary which I am getting here. But I never switched over my loyalties. And today, people will change the job for just 100 rupees. If they get 100 rupees extra, they will change the job. Loyalty doesn't make a difference to them. लॉयल्टी इन लाइफ इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। और हमने केवल अपने प्रोफेशनल लाइफ में नहीं, पर्सनल लाइफ में भी लॉयल्टी को खो दिया। अमेरिका का आज यदि आप हाल देखें, 1940 में अमेरिका में फैमिली साइज 5.5 था। इन लास्ट 63 years द फैमिली साइज हैज गॉन डाउन टू 2.5। इंडिया कंटिन्यूज टू हैव a family size of 5.5। एंड दे से नेक्स्ट 40 years अगर आज के हिसाब से भारत में परिवर्तन आते रहे तो भारत की फैमिली का साइज भी 2.5 हो जाएगा। उस 2.5 का फैमिली साइज होने से 67 करोड़ लोग बेघर हो जाएंगे जिनको नए घर चाहिए होंगे, जिसकी वजह से हमारी सरकार को जो प्रेजेंट बजट है उसका 6 गुना स्पेंड करना पड़ेगा उनके घर बनाने के लिए। और हमें लगेगा कि हमारा जीडीपी तो बढ़ रहा है, परंतु हमारी जड़ें खोखली है। इंडिया की स्ट्रेंथ इंडिया की फैमिलीज में। आज अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम टीनेज प्रेगनेंसी है। आज अमेरिका की सबसे बड़ी प्रॉब्लम 70% लोग दे आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल सिकनेसेस, स्टार्टिंग फ्रॉम एंजाइटी, नेरोसिस, डिप्रेशन, स्ट्रेस, बट दे आर सफरिंग। 70% people are suffering and 30% people are taking treatment. So that is the harm of a lopsided growth. कि हमने लाइफ के बैलेंस को खो दिया। हमने सिर्फ मनी सिर्फ फिजिकल ग्रोथ की तरफ ध्यान दिया। हमने मेंटल, सोशल और स्पिरिचुअल पैरामीटर्स को, इकोनॉमिक पैरामीटर्स को और अपने फैमिली के पैरामीटर्स को छोड़ दिया। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन ए बैलेंस इन लाइफ। मैंने एक डायल बनाया था शुरू में, लाइफ इज नथिंग बट कंप्राइज्ड ऑफ ए सर्कल which has different spokes and those spokes are physical, mental, social, spiritual, economic and family. ये 6 spokes हैं। यदि हम एक तरफ चलेंगे तो बाकी के बाकी सब डिस्कार्ड हो जाएंगे। कारपोरेट सेक्टर में आप देख लो क्या हो रहा है, लोग सिर्फ एक साइडेड ग्रोथ, प्रोफेशनल ग्रोथ तो हो रही है, कहीं ना कहीं फैमिली पीछे छूट रही है, इसीलिए डिवोर्स बढ़ रहे हैं। बच्चे जो हमारे पैदा होने चाहिए थे दादा दादी नाना नानी की गोद में, वो आया के हाथ में पल रहे हैं, और आया के हाथ के पले बच्चे इनटॉलरेंट, इम्पेशेंट जनरेशन हम जनरेट कर रहे हैं। ये हमें सोचना है।
कि हम किधर जा रहे हैं। यदि हम ठीक रास्ते पर चलेंगे, लॉयल्टी से काम करेंगे, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए, अपने समाज के लिए, तो निश्चित तौर पर हम कामयाब होंगे, अन्यथा इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। मोटिवेशन। हर व्यक्ति काम करना चाहता है, परंतु कहीं ना कहीं उसके अंदर एक स्पार्क की कमी होती है, और उसको मैं मोटिवेशन बोलता हूँ। मोटिवेशन कई तरह की होती है, एक्सटर्नल, इंटरनल, फियर मोटिवेशन। बट मैंने यहाँ सिर्फ इंटरनल मोटिवेशन को कवर करने की कोशिश की है। एक्सटर्नल मोटिवेशन आप समझते हैं, जैसे मैंने कहा, इट इज़ लाइक ए कैरेट इन फ्रंट ऑफ द हॉर्स। घोड़े के आगे यदि हम गाजर रख देते हैं तो वो भागता चला जाता है, अंत में ना वो गाजर मिलती है ना कुछ और। सो दैट इज द एक्सटर्नल मोटिवेशन। इंटरनल मोटिवेशन इज विच कम्स फ्रॉम इनसाइड, and it comes from sense of achievement, sense of belief, sense of pride, sense of responsibility, and sense of recognition. It is lasting. If you see the picture on this side, Stephen Hawking. After Einstein, if this world has known a greatest of physicists, आइंस्टीन के बाद यदि कोई भौतिक विज्ञान को सबसे ज्यादा जान पाया तो वो ये व्यक्ति है जिसका शरीर का कोई अंग काम नहीं करता, सिर्फ एक दिमाग काम करता है, एक मन काम करता है, एक आत्मा काम करता है। आज उसको बोलने के लिए भी एक रिकॉर्डर चाहिए, वॉइस भी नहीं बची, बट उसने फिजिक्स के सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल्स आइंस्टीन के बाद हमें दिए। ही इज सफरिंग फ्रॉम अ डिजीज विच इज कॉल्ड एम्योट्रोपिक लेटरल स्क्लेरोसिस, जिसमें सारे का सारा शरीर अपंग हो जाता है, पैरालाइज्ड हो जाता है सारे का सारा शरीर। ही कंटिन्यूज टू बी अलाइव। इसने हमें बहुत अच्छी पुस्तकें, बहुत अच्छा ज्ञान, बहुत अच्छी नॉलेज दी है, बट ऐसे लोग सिर्फ और सिर्फ आंतरिक प्रेरणा पर काम करते हैं, बाहर की प्रेरणा पर नहीं। डॉक्टर्स ने 21 साल की उम्र में जब इसकी बीमारी डिटेक्ट हुई तो ये कह दिया था कि 2 साल में तुम मर जाओगे। ही वॉज बॉर्न इन 1942। आप देख लो आज कितने साल का हो गया, 58 + 13 ऑलमोस्ट 71। 50 years he has defied death just because of internal motivation. It's not a meme, it's not a joke, it is very difficult. और भगत सिंह 23 साल की उम्र में अपने देश के लिए, इस देश की स्वाधीनता के लिए, हम और आप स्वतंत्र भारत में खुली हवा ले, साफ हवा ले, अपनी जान पे कुर्बान। इट इज देयर इज नो एक्सटर्नल मोटिवेटर। उसको कोई प्रधानमंत्री नहीं बनना, राष्ट्रपति नहीं बनना था, कोई मंत्री नहीं बनना था। Just he gave away his life so that the others could sleep in peace. Noble. We have to do something different. We have to do something innovative. लीक पर हर कोई चलता है, जो व्यक्ति लीक से हटकर चलता है वही नोबल कहलाता है, अनूठा। बंदरों और टोपी बेचने वाले सौदागर की कहानी आप सबने सुनी? क्या है कहानी, कोई बताए मेरे को? टोपी उठा ली थी बंदर ने, उसकी पेड़ पे चढ़ गया और उसने एक पट्टी सूझी थी, उसने टोपी पहनी, उतार के फेंक दी। जो पहनी हुई टोपी थी वो उतार के फेंक दी, और फिर बंदरों ने भी फेंक दी और सब टोपियां उसे वापस मिल गई। ये कहानी एक जनरेशन की है। जब उसका बेटा, टोपी बेचने वाले का बेटा भी व्यापार में आता है, सौदागर बनता है, तो बाप भी उसे यही सीख देता है, देख शहर में तो टोपियां बेचने जाएगा, रास्ते में एक मानसरोवर पार्क आएगा, उस पार्क में तू आराम करेगा, तेरे को नींद आ जाएगी, बंदर आएंगे, टोपियां उठा के ले जाएंगे, तो सिर की टोपी नीचे फेंकना, बंदर तेरी सारी टोपियां वापस कर देंगे और तो शान से अपनी टोपियां बेच के वापस आना। ये फादर की सीख। अब बेटे ने ऐसा ही किया, गया टोपियां बेचने। अब उसने जब अपनी टोपी फेंकी तो एक छोटी सी बंदरिया आई और वो टोपी उठा कर ली। बंदर तो सीख गए पर वो सौदागर का बेटा नहीं सीखा, क्योंकि उन आदतों को, लीक पर चलने की प्रथा को बंदर तो सीख गए पर वो सौदागर का बेटा नहीं सीखा। इसलिए हमें कुछ ना कुछ अलग करना होगा। लीक पर चलने से हम कभी अपने जीवन में सफलता अर्जित नहीं कर सकते। अपॉर्चुनिटी
हर व्यक्ति को मिलती है। सवाल यह है कि हम उस अपॉर्चुनिटी का कितना फायदा उठाते हैं। अपॉर्चुनिटी, लोग कहते हैं जॉब्स नहीं है, मैं ये कहता हूं इतनी जॉब्स हैं, करने वाले चाहिए। पीपल टॉक अबाउट अनएम्प्लॉयमेंट, आई से देयर इज नो डेarth ऑफ एम्प्लॉयमेंट. Employment is so much, you need to work. People are badly needing you. All the private organizations, all the government organizations, they badly require people who work. But we only want government jobs. क्यों? क्योंकि अंदर माइंड में कहीं ना कहीं है कि खाली रहना, अंदर माइंड में कहीं ना कहीं है भी ऊपर की कमाई चाहिए, है ना। अंदर माइंड में 100 बातें हैं। मतलब आई डोंट वांट टू गो एंड वेस्ट माय टाइम ऑन दोस, यू नो बेटर देन मी, आप सब मेरे से अच्छे से जानते हैं, आप सब लोग इस प्रोफेशन में हैं। परंतु मेरा ये कहना है कि अवसर हर व्यक्ति को मिलता है, उस अवसर का कौन फायदा उठाए ये इंपॉर्टेंट है। द अपॉर्चुनिटीज आर अंडर आवर फीट, वी नीड टू क्रिएट दोस अपॉर्चुनिटीज। अलेक्जेंडर को कहा गया था, अलेक्जेंडर ने कहा कि आई डू नॉट बिलीव इन गेटिंग अपॉर्चुनिटीज, I believe in creating opportunities. And this is what Hitler also said. I believe in creating the opportunities. That is why he always said impossible word is not in my dictionary. Impossible, he said, itself says, I am possible. This is very important. We have forgotten the potential. आज हम कंप्यूटर्स पे, कैलकुलेटर्स पे दुनिया भर के उनके ऊपर डिपेंडेंट है, पर मानव मस्तिष्क में, मानव के अंदर इतनी सोई शक्तियां हैं जिनको केवल जागृत करने की आवश्यकता है। और जैसा मैंने कहा कि हम नेगेटिविटी में पले हैं, हम अपने पोटेंशियल को, अपनी सोई शक्तियों को भूल चुके। ये मैंने एक हाथी दिखाया, आप सोचो, हाथी, सर्कस के बाहर भी आप लोगों ने देखा होगा, एक पांव में एक चेन बांध देते हैं। क्या आप समझते हैं कि हाथी उस चेन को तोड़ा नहीं सकता? एग्जैक्टली, दिस इज व्हाट हैपेंस टू हिम, कि जब वो छोटा था तो मोटी चेन्स और मोटी लकड़ियों के साथ बांध दिया जाता और वो पूरी कोशिश करता उनको तोड़ाने की, पर वो तोड़ नहीं पाता क्योंकि तब उसमें इतनी शक्ति नहीं होती। और इस वजह से उसके मन में एक धारणा बन जाती है कि तू जंजीर को तोड़ नहीं सकता। फिर वो ये भूल जाता है कि जंजीर मोटी थी, पतली थी, छोटी थी, कैसी थी। और यहां तक कहा जाता है कि यदि महावत हाथी को रेशम का धागा दिखाकर बांध दे पांव में, तो हाथी उसे भी तोड़ाने की कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसके अंदर एक धारणा बस गई कि तू पांव की बेड़ियों को काट नहीं सकता। और यही धारणा हमने अपने अंदर बना ली कि मैं इससे ऊपर उठ नहीं सकता। अरे हम सब उठ सकते हैं, हम सब के अंदर राणा प्रताप बनने की क्षमता है, हम सब के अंदर झांसी की रानी बनने की क्षमता है, हम सब के अंदर भगत सिंह बनने की क्षमता है, हम सब के अंदर राजगुरु और सुखदेव बनने की क्षमता है, हम सब के अंदर चंद्रशेखर आजाद बनने की क्षमता है, हम सब के अंदर राम प्रसाद बिस्मिल बनने की क्षमता है, और हम सब के अंदर अशफाकुल्लाह खां बनने की शक्ति है, और हम सब के अंदर महात्मा गांधी बनने की क्षमता करने वाले। जिस दिन हम अपनी सुप्त शक्तियों के बारे में जान जाएंगे और उनको जागृत करने का प्रयत्न करेंगे, उस दिन सफलता हमारे कदम चूमेगी। इसलिए डोंट फॉरगेट दैट यू हैव एवरीथिंग विद इन यू, नथिंग कम्स फ्रॉम आउटसाइड, एवरीथिंग इज विद इन अस। सो दैट इज व्हाई आई हैव रिटन charisma is within you. If you have taken a book, few people might have taken, it is with a yellow cover. Charisma is within you, that everything is within you, you just need to bring it out. And that is what Sir Aurobindo said, there is divinity in everyone, and the purpose of education should be to take out that divinity. That is the purpose of education. Everyone has some or the other divine power. किसी के अंदर कुछ अच्छी हो सकती है, किसी के अंदर कुछ अच्छी हो सकती है। शिक्षा का केवल और केवल एक ही उद्देश्य है, उस दिव्यता को बाहर निकालना, उस सोए हुए भगवान को आपके अंदर जागृत करना। We need to have quality relationships. You can go and consult a book, How to Win Friends and Influence People. It's an excellent treatise on it. And everybody, including जिनको हम भगवान कहते हैं, सबको अच्छे संबंध बनाने पड़े। भगवान राम को भी नाव वाले से भी संबंध बनाना पड़ा, बंदरों से भी बनाना पड़ा, भालुओं से भी बनाना पड़ा, तभी माँ सीता को वापस पाए। अन्यथा यदि ये संबंध ना होते
तो शायद राम लंका में जा नहीं पाते। रिस्पॉन्सिबिलिटी, वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। आज आयरनी है, पेरेंट्स आते हैं मेरे पास, डॉक्टर साहब ये हमारी तो नहीं बात मानता, आपको टीवी ना देखा करें। अरे बच्चा तुम्हारा है, तुम कह नहीं सकते। अगर मोबाइल कंपनी का कोई मोबाइल खराब आ जाएगा तो कंपनी सारे मोबाइल वापस बुला लेती है। कार की कंपनी में कोई पार्ट खराब आ जाएगा तो सारी कारें वापस बुला ली जाती हैं और उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके कंपनी ठीक करके वापस देती है। और हम अपने बच्चे की गारंटी लेने को तैयार नहीं है, हम जिनको पढ़ाते हैं उनकी गारंटी लेने को तैयार नहीं है कि पास हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। वी मस्ट hold ourselves responsible for whatever action we take, and that is very important in life. I'll just like to finish in next 10 minutes. Self esteem is very important. हम लोग पूर्ण आत्म सम्मान से परिपूर्ण हो, इसीलिए स्वामी विवेकानंद ने कहा कि तुम अमृत के पुत्र हो। वेस्ट सारा ये मानता है कि हम कीचड़ से बने, हम सिन हैं, इट वॉज वी वर बॉर्न आउट ऑफ सिन। केवल हिंदू ऐसा मानते हैं, केवल भारतीय ऐसा मानते हैं कि हम अमृत के पुत्र हैं। और यदि हम अमृत से बने हैं तो हमें अपने अमृतत्व के बारे में पता होना चाहिए, हमें अपने स्वाभिमान के बारे में, आत्मसम्मान के बारे में पता होना चाहिए। मैंने एक कहानी पढ़ी कि एक मछुआरा था, वो छोटी मछलियां पकड़ता था। नॉर्मली तो लोग बड़ी देख के खुश होते हैं, अभी बड़ी आ गई, वो छोटी छोटी पकड़ता था। किसी ने उससे पूछा कि भाई तू बड़ी बड़ी छांट के वापस समुद्र में फेंक देता है, छोटी क्यों पकड़ता है? तो उसने कहा कि मेरे घर की कढ़ाई छोटी है। तो भाई अपनी कढ़ाई को बड़ा करो ताकि आप बड़ी मछली पकड़ सको, अपने आत्मसम्मान को बढ़ाओ, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। और बम्बल भी जो बड़ी सी ये होती है ना, इसको पता ही नहीं होता कि तेरे पंख जो हैं तेरी बॉडी से बहुत छोटे हैं, नहीं तो उड़ ही ना पाए। टाइम मैनेजमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। टाइम कैन पास, अगर आप नाखून चबाते रहें तो भी टाइम पास हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि जो काम आप कर रहे हैं जितना समय है उसमें नहीं पूरा हो रहा, तो ये 6 चीजें जो मैंने यहाँ पर दिखाई हैं, डंप अननेसेसरी वर्क, डिक्रीज द अमाउंट ऑफ वर्क, डेलीगेट, डिक्रीज मीटिंग टाइम, डील विद इफेक्टिव कम्युनिकेशन एंड डू फर्स्ट टाइम राइट। These are the 6 Ds, very important to time management. Understanding is very important. We must understand, हम मूल में जाएं किसी चीज के, तभी हम अपने जीवन में सफल हो सकते हैं। यदि हम मूल में नहीं जाते तो हम कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। यदि हमें मूल का पता है तो जो कार्य हमें नहीं भी आते हम तब भी कर सकते हैं। कहते हैं एक बार जो मुल्ला दो प्याजा था उसने बीरबल को फंसा दिया। उसने कहा कि भी आज अकबर को कहा कि बीरबल से तीर चलवाना देखते हैं, क्योंकि बीरबल को उसे पता था तीर चलाना नहीं आता। तो बीरबल को तीर चलाने के लिए दे दिया। बीरबल ने पहला तीर चलाया, लगना कहा था, उल्टा गया तो उसने कहा कि ये राजा टोडरमल का। दूसरी तरफ गया तो उसने कहा ये मुल्ला दो प्याजा का। तीसरा गलती से लग गया तो कहता ये बीरबल का। सो उसको अंडरस्टैंडिंग थी। तो अंडरस्टैंडिंग होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। विजन का होना अगेन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हमें अपनी लाइफ का एक विजन डॉक्यूमेंट तैयार करना चाहिए। ये कुछ लोग हैं जो विजनरीज थे। एंड्री कार्नेगी, इसने फील किया कि अमेरिका में स्टील इंडस्ट्री बढ़ सकती है, स्टील का सबसे बड़ा टाइकून बना। जेम्स जे हिल, ट्रांस कॉन्टिनेंटल रेलवेज का कंसेप्ट इस व्यक्ति ने दिया। डेमोस्थेनीज स्टटरर था, हलकलाता था, पर उसने एक पब्लिक स्पीकर बनने की अपनी इच्छा, अपना विजन रखा, एंड ही बिकेम ए पब्लिक स्पीकर। मार्टिन लिटलटन, कुछ नहीं आता था, 12वीं तक स्कूल में ही, 12 साल तक स्कूल में ही नहीं गया था। फिर किसी वकील के पास फादर लेके गए तो उसको उसका आनंद आया जिरा सुन के। उसने कहा कि मैं भी अमेरिका का सबसे बड़ा वकील बनूंगा। और उसके बाद वो ऐसा वकील बना जिसने अपनी फीस $50,000 आज से 50 साल पहले। हेनरी फोर्ड, जिसकी वजह से आज हम कारों में घूमते हैं। वॉल्ट डिज्नी, जिसके कार्टून्स को रिजेक्ट कर दिया गया था। कांसास सिटी एडिटर सेड योर कार्टून्स हैव नथिंग इन देम, and he gave Disneyland to this world. राजा राममोहन राय, सती प्रथा, नारी शिक्षा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, a reformative in education, स्वामी विवेकानंद, builder of modern India, सरदार पटेल, जिसकी वजह से 504 रियासतों का देश ये भारत बना। और पंडित नेहरू, जिन्होंने इस देश को साइंटिफिक टेम्परामेंट दिया। और महात्मा गांधी, जिन्होंने इस देश को आजादी दिलाई। उन्होंने किस दिन, महात्मा गांधी, ये भारत किस दिन आजाद हुआ? कोई बता सकता भारत कब आजाद हुआ? लोग कहते हैं 15 अगस्त 1947 को।
पर मैं ये कहता हूं कि जिस दिन गांधी का सामान ट्रेन से बाहर फेंक दिया गया था और गांधी ने संकल्प लिया था, भारत उस दिन आजाद हो। विजडम इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपके अंदर प्रज्ञा का भाव हो, और विजडम कैसी हो? ऐसी नहीं कि आज आप देखो किसी के प्लास्टर लगा हो ना बाजू पे, तो हम पूछते हैं टूट गया क्या? भाई प्लास्टर किस लिए है? टूटा है तो प्लास्टर लगा ना। नहीं बैग वो नहीं फैशन है, फैशन में तो नहीं कोई लगाएगा। नहीं सर, दूसरा राइटर लेना हो सर वैसे करवा लेते हैं। चलो वो तो, पर हम क्वेश्चन क्या करते हैं, ऐसा नहीं कि हम किस लिए करते हैं, राइटर लेने के लिए करवाते हैं। ऐसे तो मर्डर वाले करके आके करवा लेते हैं, पिन रखवा के करवा लेते हैं। बट मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी का टूटा हुआ तो हम अक्सर पूछते हैं भाई प्लास्टर लगा हुआ तो टूट गया क्या? सवाल यही होता है ना। कोई अर्थी जा रही हो तो हम कहते हैं मर गया क्या? वो कहते नहीं, घुमा के ले आएंगे तेरे घर छोड़ जाएंगे। ऐसा नहीं होता। इसलिए अंधों की संख्या जो है ना इस देश में बहुत ज्यादा है। अंधे केवल आंख के नहीं, आंख के अंधे सिर्फ 2% है। आंखों का इलाज मैं करता हूँ। 98% लोग आत्मा के अंधे हैं। अब आत्मा के अंधों का इलाज करने के लिए स्वामी विवेकानंद जैसे लोग या महात्मा गांधी जैसे लोग इस देश में आते हैं। अन्यथा आंखों के इलाज करने के लिए तो हमारे जैसे छोटे मोटे डॉक्टर ही बहुत हैं। तो इसलिए आत्मा से सब कुछ होता है। यदि आप ये समझो कि हम आंखों से देखते हैं तो ये हमारा मिसकंसेप्शन है। सूरदास अंधे थे, परंतु भगवान के बाल्यकाल का, भगवान कृष्ण का जितना वर्णन उन्होंने अच्छा किया शायद ही कोई व्यक्ति कर पाए। और कहते हैं कि वो अपने पद भगवान कृष्ण के आगे बैठकर लिखते थे। और एक दिन कहते हैं कि वो राजा ने हुक्म दिया कि ये तो रोज की बातें हैं कि कानों में कुंडल, मोर, मुकुट, फलाना ढिकाना, ये छोड़ो, आज भगवान का कोई श्रृंगार मत करो। फिर देखते हैं सूरदास क्या लिखता है। सूरदास आए, सामने बैठे। सूरदास ने लिखा, सखी देखियो आज अचंबा, सखी देखियो आज अचंबा, हरि देखियो नंगम नंगा। ये हम आत्मा से देखते हैं, आत्मा से सुनते हैं। जिस दिन हम आत्मा से देखते हैं, आत्मा से सुनते हैं, उस दिन हमारे अंदर की प्रज्ञा जागती है। उसके चक्षु नहीं होते, प्रज्ञा चक्षु होती है। इसलिए वाइज होना इज इम्पोर्टेंट। और पेपरों में तो लिखवा ही लेते हैं, पर वो कभी जिंदगी में कामयाब नहीं होते। पेपर तो लिख लेते हैं, डिग्री ले लेते हैं, बट वो जीविका में रह जाते हैं, जीवन नहीं बना पाते। हमें ये चूज करना है कि हम जीविका उपयोगी अपनी लाइफ बनाना चाहते हैं या जीवन अपना बनाना चाहते हैं। ये डिपेंड करता है। अगर डिग्री लेके नौकरी पाना चाहते हैं, हमारा ध्येय, हमारा गोल है, तो इट इज वेरी इजी कि ठीक है राइटर ले लो। नहीं तो फिर अंदर की प्रज्ञा जगानी चाहिए। यील्ड, हम जो कुछ भी करें अपने जीवन में परमात्मा को समर्पित करें। परमात्मा को हर चीज हमें समर्पित करनी चाहिए। तेरा तुझको अर्पण की भावना से हमें कार्य करना चाहिए, क्योंकि जब जब हम भगवान के साथ होते हैं तब तब भगवान हमारी मदद करता है। उमर खयाम के बारे में कहते हैं, सूफी संत थे, जंगल में गए, एक साथी उनका शिष्य साथ था, नमाज पढ़ने लगे, इतने में शेर आ गया, शिष्य पेड़ पे चढ़ गया, उमर खयाम अपनी नमाज अदा करते रहे, शेर वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद शिष्य नीचे उतर आया, उमर खयाम और वह शिष्य दोनों के दोनों वापस चलने लगे। रास्ते में वो शिष्य क्या देखता है कि उमर खयाम ने अपनी गाल पर जोर से चांटा मारा। शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या हुआ? उसने कहा, कुछ नहीं भाई, एक मच्छर था। तो शिष्य बड़ा हैरान हुआ कि जब शेर आया तो बिल्कुल विचलित नहीं हुए, अपनी नमाज अदा करते रहे, और एक मच्छर आया इतने विचलित कि अपने मुंह पे तमाचा मार दिया। तो उसने कहा, गुरुदेव ये क्या भेद है? तो गुरुदेव ने कहा कि जब शेर आया उस समय मैं परमात्मा के साथ था, और जब मच्छर आया तो मैं तेरे साथ। इसलिए लाइफ में ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हम सब कुछ परमात्मा को अर्पित करें। एक छोटी सी कहानी और समुराई की आपको सुनाता हूँ। समुराई होते हैं योद्धा जापान में, और नई नई शादी हुई, हनीमून मनाने जाने लगा तो किश्ती में चला गया। किश्ती में जाते हैं सब लोग, जापान में आसपास सब समुंदर है। तो जैसे ही किश्ती रास्ते में तूफान आया, डोलने लगी, सब लोग इधर उधर भागने लगे। वो समुराई बड़ा अविचलित, बड़े आराम से वहां पर बैठा रहा। तो लोगों ने कहा कि भाई, बीवी नहीं कहा, लोगों ने तो क्या कहा कि सब लोग देख अपनी हाथ पैर मार रहे हैं बचने के लिए, और तू बड़े आराम से बैठा है। समुराई ने फट से तलवार निकाली और अपनी बीवी की गर्दन पर रख दी। बीवी हंसने लगी। समुराई ने कहा, तू क्यों हंसी? उसने कहा, जब तलवार तेरे हाथ में है तो डरना काहे का? तो उसने कहा, बस इतनी सी बात है, तलवार जब उसके हाथ में है तब भी क्या डरना। और अपनी जील कभी कम मत होने दो, अपना उत्साह कभी कम मत होने दो। उत्साह एक ऐसी चीज है, स्वामी जी ने अपने अंतिम दिन अपने बच्चों को व्याकरण पढ़ाई, जो वहां पे आश्रम में थे,
अंतिम दिन पूरी काली माँ का पूजन किया, पूरी बैठक ली, अपने गुरु भाइयों को पूरे का पूरा संदेश दिया और फिर खिड़कियों को खोल दिया और सिर्फ एक ही शब्द कहा, लेट नोबल थॉट्स कम फ्रॉम ऑल दी साइड्स। ये उनका जील था। आखिरी दिन तक भी हम जो भी कार्य अपने जीवन में करें, हर दिन को अंतिम दिन समझकर करें कि कल अगली सांस का किसी को भरोसा नहीं है। हम अपने जीवन में अपने उत्साह को कम ना होने दें, यही सफलता का मूल मंत्र है। और अंत में ये लाइनें मैं चाहूंगा कि अगर आपने कुछ मेरे से पाया तो आप जोर से पढ़ें, आप पढ़ेंगे तो मुझे भी आनंद आएगा। अगर फितरत है, मिल के पढ़ें, जरा आनंद आएगा। अगर फितरत है तो जिद अपनी भी है, गिराकर बर्फ जगह हम ढूंढ ही लेंगे, जमीन पर सर छिपाने की।